मैं ना काफ़ी टाइम से कंटेंट देख रहा हूँ इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर मेरे को एक चीज़ हमेशा खटकती रही कि हम लोग वहाँ पे फ़िल्टर कर देते हैं। वी डोंट ओनली यूज़ फ़िल्टर फॉर फोटोज़, वी आल्सो यूज़ फ़िल्टर फॉर आवर ओन लाइव्स। जितना फ़ील हो रहा है उतना बताते नहीं हैं या जितना एक्सप्रेस करना होता है एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि या तो जजमेंट का फ़ियर होता है या तो सोशल मीडिया पे जाना है या तो कुछ व्हाटएवर मे बी द रीज़न। वहाँ से स्टार्ट हुआ अरू रियल। My team suggested the name to me. I was very skeptical कि यार अरू रियल समझ नहीं आ रहा, but the name grew on me क्योंकि it's not about the reels that you make, it's also about the reality that we don't address. तो यहाँ पे हम परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे, यहाँ पे हम सिर्फ ऑनेस्टी ढूंढ रहे हैं और ऑनेस्टली बात करेंगे। तो होपफुली आपको पसंद आए, देखते रहिए। Welcome, everyone, for today's podcast. We have a very, very, very dear friend of mine. She is a NLP trainer and also a quantum healer, a beautiful soul. And I hope you enjoy the conversations that take place. So please welcome Ahana. Thank you so much for having me here. And of course, you are a dear, dear, dear friend. And I'm really happy that I can be a part of this journey of yours. So this is a new journey, as you know, that I started because I believe that we are on the same wavelength, but there are a lot of things that people take for granted. और वो छोटी छोटी चीज़ों को जब हम समझते हैं ना, तो आई थिंक हम अपने आप को भी और दुनिया को भी ज़्यादा समझ पाते हैं. So that is why this whole podcast series came into my mind, and you, of course, as my special and my first guest here on the series. Thank you for being here again. Now, I'll cut straight to the chase. Let's not, waste any time of the audience also and each other, I would say. Time is precious. That is obviously there. So, what does body positivity mean to you? See, body positivity, I would not say only positivity, it's about accepting your body first, right? And there could be negative part and positive part both, but just accepting first, I feel it's body positivity per se. एंड आई फील लाइक जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी लास्ट ब्रेथ होती है, बॉडी इज़ द कॉन्स्टेंट थिंग दैट वी हैव विद आवर सेल्स, नो बडी एल्स. सब रिश्ते आएंगे जाएंगे, सब आएंगे जाएंगे, घर भी दीवारें बदल जाएंगी, एक इकॉनमी बदल जाएगी, सब बदल जाएगा, लेकिन बॉडी कांस्टेंट रहेगी. So this is my constant lover, my constant friend for all of us. Our bodies are that precious to us. Yeah. So I feel to see it from that angle, that my body is my temple. मैं जब तक हूँ मेरे साथ मेरी बॉडी तो है. सो बॉडी हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस, इट्स ओन कॉन्शियसनेस. कैसे होता है, जैसे हम किसी जंगल में गए फॉर एग्जाम्पल, और बहुत दूर से ना ना कोई आवाज़ आ रही है, साउंड भी लेट ट्रैवल कर रही है. लाइट का भी है कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन द साउंड, राइट? हाँ, Correct. ओके. गॉट इट राइट. Correct. स्कूल में भी Physics ठीक अटेंटिव है. थी बहुत. हाँ. सो अगर लाइट भी नहीं आ रही है, कहीं से आने में टाइम लग रहा है, साउंड का भी टाइम लग रहा है, पर मुझे ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे. माई बॉडी विल गिव मी दैट इंटेलिजेंस की आगे खतरा है, देयर इज अ डेंजर. Intuitive. Intuitive, that body has that intelligence. Like how we say that, if I'm praying to God, my prayers are, a connect to my God. So the intuition, the gut feeling is how my God is talking to me, communicating to me, and that gut feeling is also in my body. Of course. राइट. सो जितने भी हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन्स में हैं, उससे बहुत ज़्यादा हमारे गट में है. दैट्स द सिग्नल दैट वी आर, everything that is around my environment is basically I'm sending all those signals from inside of me. So I Fair feel enough. body is very very important to all of us. Sometimes हम भूल जाते हैं कि हम बॉडी कैरी कर रहे हैं क्योंकि हम इतना माइंड में होते हैं, बट बॉडी तो है ही, एंड Of आई लव course. माई बॉडी. Okay. Now, coming from acceptance, when did this happen to you? Like, what I want to know is when was the first time you actually accepted
कि okay, this is my body, I have to take care of it. And how did it come about to be? सी आई थिंक जब से मैं हीलिंग में आई हूँ सो एक्सेप्टेंस आ गई है बट आई वुड लाइक टू गिव वन क्रूशियल आई वुड लाइक टू शेयर वन क्रूशियल टाइम ऑफ Please, माई please. लाइफ व्हेन आई एक्चुअली लॉस्ट माई पेट you know, I was very, very close to him. He was like my child. You have met him, Theo Yeah. Kocher. So he was a pug, and when he passed away, I couldn't take that. And that was the time where I actually, in a way, went into depression, is a strong word, but I went into my shell because I was just constantly asking, why did this happen to me? And I couldn't accept it that he's not with me. That loss, which is a very personal loss, right? But at that moment, in last 1 year, it's been 2.5 years, he's no more, I actually put on 10 kgs. And all my life I was always been a lean girl, very thin. You have seen me, right? और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा इतना वज़न कब बढ़ गया. People used to tell me I was in my own zone because I was coping up with my own sadness and grief, you know, in life. And but you know, Aru, it is very sad also at that time when your friends would just see my pictures and you know they'll put some comments कि अरे तू मोटी हो गई है, अरे तुझे क्या हो गया, oh is it a part of aging, oh अरे ये हो गया. I was like, Part of aging? yeah, maybe hormonal Okay, तेरे fair को हो enough. गया है कुछ, you know. I understand, you know, I'm not saying anything against to anybody, but I feel where is the compassion that we talk about? That they were, of course, beautiful, beautiful people who are there in my life, who messaged, who reached out to me asking, are you doing well? Are you okay? Only that statement is, you know, enough Enough. to just somebody is actually reaching out to you and वो ना आपको सूथ कर रहे हैं आपके ट्रॉमा से बिकॉज आप ही नहीं कर रहे हो. इट्स वेरी इजी टू टैग एंड जज कर दो किसी को, ही इज फैट और शी इज फैट, oh she is short, oh she is dark. You're just put labeling somebody. Just sit with somebody and just ask, how are you doing, is everything okay, are you sleeping well, I hope that you know financially it's going beautiful with you. Nobody is asking that. I'm still blessed with people. Of course, I would not say, I will not take away from No, those fair. people you all are asking me. But yet, there were few who could understand this. Or I would say there were few who would actually ask and majorly wouldn't understand this. Yes. Yes. Yeah. So I think that was, I won't say a difficult time, but a very disheartening because I was already going through a grief Yeah. and that emotional thing. And at the same time, it just hit the reality because हम सबके एक illusion होती है. I was like, if I'm ordering anything from Zara, मैं medium ही करूँगी, Ralph मैं medium ही करूँगी. I didn't want to accept कि मैं large में आ गई. Okay. सो फॉर मी, मुझे मुझे क्योंकि समझ ही नहीं रहा था ना, कॉन्शियस ईटिंग नहीं हो रही है मेरी, इमोशनल ईटिंग चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, कभी भी रोना आ जाता था. एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो डूइंग वेरी वेल विद माय वर्क वाज इंक्रीजिंग अ Touch wood. लॉट, टच वुड. एंड देन जो मेरे इमोशंस है वो मैं किसको दिखाऊं? बिकॉज इफ आई एम मीटिंग समबडी, दे आर जस्ट लुकिंग एट माई बॉडी फ्रॉम ऊपर से नीचे तक, ये तो मोटी हो गई है, राइट? अगर कोई नहीं भी देख रहा फिर आपको लगता है शायद वो ऐसा देख रहा है. हाँ, maybe you are not able to judge. या तो मैंने पार्टी करना बंद कर दिया, मैंने बाहर जाना बंद कर दिया. You cocooned your own self. या मैंने कहा ठीक है अब यही टाइम है, एक तरह से मैंने उसको डेवलप किया. आई विल डेवलप माई स्किल्स, मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगी, मैं काम करूंगी. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. बट येस, आई थिंक जो तूने क्वेश्चन पूछा था बॉडी का, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप is accepting, coming out of that illusion and accepting yourself कि ठीक है यार, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी फैट सेल्स देखे, सेलुलाइट्स देखे, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पे फैट आता है, यहाँ पे फैट आता है, ओ माय गॉड, अच्छा ऐसी होती है बॉडी. आई वॉजंट इवन अवेयर ऑफ इट. फॉर मी इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग. एंड मैं उसमें खुद ही सोच रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था. आई स्टॉप्ड वर्किंग आउट. देन यू, तुम्हें हर चीज़ में कॉन्शियस ईटिंग नहीं रहती, कभी भी किसी भी टाइम पे खा रहे हो, किसी भी टाइम पे सो रहे हो. सो ऑल दिस दैट थिंग स्टार्टेड विथ मी. बट थैंक्स टू माई थेरेपीज एंड हीलिंग्स, यू नो, आई कुड टेक इट वेरी ग्रेसफुली. यस, वो एक डाउन टाइम था, पर कुछ ही टाइम के लिए था.
मुझे पता है मुझे अपने आप को उठाना है. आई हैव टू फर्स्ट ओनली एक्नॉलेज इट एंड एक्सेप्ट इट. मेरे को वेइंग मशीन में चढ़ने से डर लग रहा था कि मैं I know, कैसे I know, I know. How I it know is. that phase. But I was like कि ठीक है Ahana, just accept it. तो I accepted it and it wasn't very easy for me, but to sit with yourself, to tell yourself it's okay Ahana, I am sitting with you, my body is with me, I am grateful to my body. And I started giving positive affirmations to my body. I would touch and I'll say it's okay. I would just always rub and say it's okay if you put on weight, that's okay. We'll get there. We'll get to medium size, and I am in my medium size today, so I'm happy. But that also came about with, again, with your understanding of your own self first. कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है. Like, it's not even funny. मेरे पास आज भी 32 वेस्ट की जीन्स पड़ी हुई हैं कि मैं यहाँ था. मेरे पास वो भी है 68 वेस्ट Oh कि मैं wow! वहाँ भी था. Oh तो wow! it was, तो अभी I'm in the middle. I'm in my own journey, as We we all talk are. about. Trust me, we all are work in progress. All I of think we'll us. always be in work in progress. And ये नहीं that's तो कुछ और. वो अच्छा है. हाँ. That's the beauty At of least our we are life. enjoying. Yeah. Okay. Now, इसी में you said healing became a very big part of it. Would you like to expand on it a little bit? Like when you are healing others, but you're already going through something yourself. Yes. It's not easy. As actors, we show all the emotions that we can, but अंदर जो चल रहा है वो अंदर का सुनामी किसी को नहीं पता. Exactly. So, and you are, your work is such where you actually look internally to everyone else, but then there's an internal of yours also. Yes. So if you can expand on that, how did it help out, or how was it? Very, very good question. It's actually very deep also. I would say that, Aru, first is, of course, as I said, acknowledging, then accepting कि yes, ऐसा हुआ. And thanks to my healing and therapies, जो मैं already 8-9 साल से कर ही रही थी, right? So, of course, for a month, I would say 3 months, I actually even stopped doing that. मैं करूँगी नहीं करूँगी, क्लाइंट्स को हील कर देती हूँ. होता ना आपने अपने आप को बस पढ़ाई में डाल दिया. आई वांटेड टू डू PhD विच आई स्टिल वांट टू डू. मैं बहुत कोर्सेज करने लग गई, सिखाने भी लग गई, सर्टिफिकेशन कोर्सेज देने लग गई, तो मेरा काम इंक्रीज होता चला गया. बट देयर वर टाइम्स स्पेशली इन द नाइट, when you want to know what is your real emotion, that any one of us who's in the night alone in the bed, and when you're about to sleep and you're not getting sleep, you would face your biggest fear in life. And for me, I was like, okay, fine. I know I have put on weight. I know I'm not wearing my own choices of clothes that I would want to wear. I'm not ordering large size. I'm not, in fact, shopping. जो मेरा एक था हमेशा से shopaholic types वो चला गया. But then I started writing a letter to myself. I started writing a letter to the universe that, my dear universe, or my dear Guruji, or my higher self. And I would just write whatever is going inside of me, all my emotions, Everything. I have even abused myself there. Negative, Negative, positive. इतना complaining, all the complaints there. और जैसा था कि जब भी मेट में वो जला देते, I used to burn it. मैंने वो किया 1 द इंटायर पेपर. एटलीस्ट मेरे इमोशन सारे बाहर आ गए. जो मैं बात किसी और को नहीं बोल पा रही हूँ, वो मैंने एक इमोशन, जो भी केमिकल चीज़ें चल रही थी मेरे अंदर, मैंने यहाँ पेपर में डाला, तो थोड़ा रिलैक्स आने लगा. आई वोंट से मेजर चेंज, एटलीस्ट इट वॉज अ स्टार्ट. It's a process. It's a process, right? Then I started giving positive affirmations to myself, where I would just touch my body and tell my body first, it's okay and I love you. I love you, my body. I love the way you are. I love the way you look. Now tell me, body, what and how would you like to look now? Let's start with the process. So then I started with gymming. It didn't work out because मैं जिम जाती थी, मैं वेट लूज ही नहीं कर रही, मैं और कर रही और गेन कर रही थी. मेरा भाई बोलता, ऐसा कौन सा जिम है जहाँ तू जाती है तू और मोटी होकर आ रही है. मैं कहा यार, आई डोंट नो, because I was going through that stress, that I realized I first have to address my stress, which is giving inflammation in my body.
सो आई स्टार्टेड डूइंग थेरेपीज वन आफ्टर द अनदर कि ठीक है, आज मुझे बुरा लग रहा है, इस पे थेरेपी, आज मुझे रोना आ रहा है, आज मुझे उसकी याद आ रही है। ऐसा नहीं कि मेरी मेमोरी कहीं चली गई, बट जो वो चार्ज था, जो वो ट्रॉमा था, वो गिल्ट था कि मैं कुछ नहीं कर पाई उसके लिए, वो चला गया, राइट? एटलीस्ट टुडे आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट इमोशनल अबाउट इट, अंदर चल रहा है कुछ ना कुछ, पर मुझे पता है एटलीस्ट मैं रो नहीं रही हूँ आज, यू नो। एक्सेप्टेंस आ गई। एक्सेप्टेंस आ गई है कि वो मेरे अंदर ही है, वो कहीं नहीं गया है। सो उस पे हीलिंग जो मैंने प्रोसेस किया, जो योयोइंग वेट होता है, बहुत लोगों का होता है। और एक्चुअली यू नो हाउ गौतम बुद्धा वंस सेड ना, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, तुम सब मेरे एक्चुअली मिरर हो। तो मुझे जो भी क्लाइंट्स आ रहे थे, दे ऑल वर माय मिरर्स, हाउ दे यू नो वी मिरर न्यूरॉन्स, राइट? वो सब मेरे मिरर्स थे। सो मैं जब उनको हील करती थी, मेरे को समझ में आता था कि अब मुझे जाके आधा घंटा ब्रेक लेके अपने पे इस चीज पे हील करना है। Got So it. in a way, I don't know if I was helping them or not, but in return they were helping me a lot. So I'm truly grateful to all my clients who comes to me, and thank you so much. Because of you guys, you know, I could really go even deeper and touch those parts जो inner child होते हैं. Because you know also there is a thing, जब हम अपनी body में safe नहीं feel करते, people put on weight. When हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, we put on weight. कॉन्शियस ईटिंग नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि हम बॉडी में ही नहीं होते, हम माइंड में होते हैं। तो दिस एक्सरसाइज, व्हेन यू टच योर बॉडी एंड यू नो जस्ट से दैट आई लव यू, यू आर अमेजिंग, यू आर ब्यूटिफुल, नाउ टेल मी बॉडी व्हाट वर्कआउट you would like to choose. Then I started doing yoga. Okay, you Yeah. changed into yoga. Yes, from gymming I changed into yoga. And of course लोगों की जजमेंट थी, योगा से कहाँ पतली होगी, 10 किलो पुट ऑन हो गया है, look at yourself, this and that. I said, I know it's a slow process, but I know it is right for me because my body wants to do yoga, Fair enough. right? That is what the body is asking for क्योंकि you. बॉडी के अंदर सारे सेल्स के अंदर ना हमारे इमोशंस स्टोर्ड हैं। अगर हमें अपने आप को हील करना है, हाउ इट सेज दैट बॉडी वांट्स मूवमेंट, योर माइंड वांट्स पीस एंड योर सोल वांट्स फ्रीडम, राइट? तब इन तीनों का अलाइनमेंट हो गया तो आई एम इन अ प्रेजेंट मोमेंट। तो बस वही करना था। तो सेल्स के अंदर सारे ट्रॉमा, सारी सैडनेस, सब इसके अंदर पूरा फीड इन है, पूरा स्टोर्ड है। सो व्हेन आई एम स्लोली मूविंग माय बॉडी, वर्किंग आउट, I am also letting go of all the emotions that is stored in my body, provided at the same time I'm also doing some mental work, which is going into spirituality, or you know doing yoga, which gives me a lot of you know calmness, healing. My healing process, I love it. I just love it. Yeah. So these are the things I started doing, and I think therapies definitely helped me. Definitely. I am grateful to the universe, to Guruji, that I am the chosen one, that I got into this path, क्योंकि शायद यही path एक दिन मेरे काम आना था Hmm. और आगे भी आएगा. So yeah, thank you. So basically, you know, the universe, because you were giving it everything that you had, so it was giving you what you needed rather than what you wanted. You know, needs are more important than wants sometimes. Yeah. And sometimes just being is more important. There is no need, there is no want. I just want to be one with the universe. You know, I'm sorry, third topic different जा रहा है, but I just want to add, you know how. Please add the flow. Yeah. So basically जब हम sad में हैं, grief में हैं, जो मैं थी, because I had attached myself so much to my past. मैं past को नहीं छोड़ पा रही थी, right? And sometimes when we are anxious, Just we are to in the clarify, future. past मतलब जैसे दिखते थे. जैसे मैं दिखती थी, मेरा एक वर्जन है ना अपना, हाँ. मैं ऐसी दिखती थी, मेरा माय पेट पास्ट अवे, तो मुझे उसका ग्रीफ था, उस चीज को 2 साल हो गए, पर मैं अभी भी वही हूँ. इट्स नॉट इजी टू कम, राइट? मेमोरी में रह सकती, पर उसकी वजह से मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, उसकी वजह से मैं जिम नहीं जा पा रही, उसकी वजह से मैं कॉन्शियस ईटिंग नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन माई प्रेजेंट, आई एम स्टिल लिविंग इन माई पास्ट. और इफ आई एम फीलिंग एंग्शियस, आई एम फीलिंग वरीसम, व्हाट विल हैपन नाउ नेक्स्ट, मेरे को काम मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा कहाँ आएगा, घर कहाँ जाएगा, सो आई एम स्टिल लिविंग इन द फ्यूचर, आई एम नॉट इन द प्रेजेंट. तो दोनों ही सिनेरियो में मेरी कॉन्शियस ईटिंग तो हो ही नहीं पा रही. मैं अवेयर ही नहीं हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरी बॉडी है, मैं आज यहाँ दिखती हूँ, मैं औरों के साथ बैठी हुई हूँ, कैमरा यहाँ है, वरना मुझे लगता कि बस मैं हूँ ही हूँ.
यू नो Fair enough. दिमाग में हूँ और बॉडी में नहीं हूँ। तो जब संत मुनि जी जाते थे पहाड़ों पे, तपस्या करने के लिए जाते थे, जो मेडिटेशन होती थी, मेडिटेशन इज व्हाट टू गेट यू इनटू योर प्रेजेंट। तो जब मैं अपने प्रेजेंट से अलाइन हो रही हूँ, राइट, बॉडी सोल और माइंड से मैं अलाइन हो गई हूँ अंदर, मैं अपने हायर सेल्फ के पास जा रही हूँ, मैं इतनी देर तक प्रेजेंट मोमेंट में रह गई हूँ कि भगवान जी भी अब अपीयर होके बोल रहे हैं कि मांग, तेरे को क्या मांगना है, तेरा वरदान दूं मैं तुझे। So for my understanding, as per my understanding, I'm not challenging anybody, it's just as per my understanding that being present is a gift. मेरे गुरु जी मेरे प्रेजेंट में हैं, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी अबंडेंस मेरी प्रेजेंट में है। तो जब मैं प्रेजेंट में हूँ तो मैं तो वरदान, गुरु जी का ही तो अंश है, शिव जी का ही तो अंश है, तो हम उनके साथ अलाइंड हैं। तो क्या मोटा और क्या जजमेंट और क्या लेबलिंग, यू आर सो कॉन्शियस एंड अवेयर एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एंड जॉयफुल एंड ब्लेस्ड कि मुझे ये ब्यूटीफुल बॉडी दी है, नो मैटर हाउ इट लुक्स लाइक टू अदर्स, आई लव इट, आई एम इन लव विथ माई बॉडी। Okay. See, this is what we are in the present at the moment. You Yeah. know, I love the way I am. I love the way my body is transforming also. उसमें ये Yes. now because I'm losing a lot of fat, उसमें there are things that look aesthetically good also. There are things that look aesthetically bad also. Yeah. But treat But them we're like a working reward. on it. Yeah. ऐसा नहीं कि हम बैठ के हमें कुछ करना नहीं है, करना नहीं है. नो, वी कर्म वांट टू तो मेक करना आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। हम फिट और हेल्दी जा रहे हैं, पर जो एस्थेटिक है कि भाई 0 फिगर होनी चाहिए, 24 वेस्ट होना चाहिए, ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्रॉप टॉप पहनना चाहिए, पहनो आप। बट फॉर माई बॉडी मे बी इट्स नॉट राइट। फॉर माई बॉडी आई नीड टू बी फिट एंड हेल्दी इन माई ओन वे, द वे माई बॉडी लाइक्स इट एंड एक्सेप्ट्स इट। Has there been ever in your life you felt pressure to look a certain way? Yeah. I would say people did try to pressure me. Okay. I didn't buy that because I was little bit more aware. I was I knew that what I'm doing for my body is what my body wants, but I have encountered a lot of clients who would come and they feel really pressured कि भाई boyfriend is not committing for marriage because they have to lose this much of weight, stuff like that. I feel sad, but at the same time, each one to its own. I don't want to get in there, but yes, if that is stressing you out, that is giving you pressure where you are feeling low about yourself, despite of working out, you don't have to get into any fad thing जो आजकल चल रहा है. People are taking injections, people are taking fat burners, so much so because they are in the race. Yeah. I want to look like this. Hmm. How about you ask your body, उसको कैसा लगना है? तो प्रेशर का तो पॉइंट ही नहीं है। जहाँ प्रेशर है वहाँ कंफर्ट थेरेपीज, गो फॉर योर मेडिटेशंस, गो फॉर रनिंग, क्योंकि सिर्फ फिजिकली आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करोगे वो भी इनफ नहीं, और सिर्फ मेंटल एक्टिविटी करोगे वो भी इनफ नहीं। इट हैज़ टू बी बोथ साइमल्टेनियसली, अमेलगमेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, बॉडी मूवमेंट एंड माइंड कामनेस। दैट इज वेयर आपको प्रेशर लोग तो देंगे, लोगों का काम है, वो 4 लोग जो कहीं बैठे हुए हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, कहीं है वो 4 लोग, बट नहीं, और if you do are I want to buy self-aware, that? just rip the pressure out. हाँ, मतलब देख, हम बोल देते हैं, पर जो जिसको ये हो रहा है, जिसने, क्योंकि मैंने जैसे पुट ऑन किया, आई कैन रिलेट, जिसने पुट ऑन एकदम से किया उसके लिए शायद प्रेशर हो सकता है। आई वॉज द लकी वन कि मैं हीलिंग में ऑलरेडी थी, Of course. राइट, सो आई कुड टैकल दैट। पर जो नहीं है, वो कोई अगर रात को रो रहा है, वो रात को खाना खा रहा है, मेटाबॉलिज्म और ख़राब हो रहा है बिकॉज आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपकी बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ जो हो जाती है, जहाँ पे हम अपने एक्ट, और पता है क्या होता है, जब हम लोग खाना खाने लगते हैं ना, तो हमें डोपामिन रश भी हो रहा है, हमें शुगर रश भी हो रहा है, उसी से हमें खुशी मिलने लग जाती है, Comfort. तो बॉडी को और वो चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम इस चीज़ को अपने स्पोर्ट से या अपनी एक्टिविटी से कैसे कोरिलेट करें कि डोपामिन उसमें भी है, हाँ. पर बॉडी को बाहर जाने का मन ही नहीं करता फिर। सो दैट फेज आई फील आई could really heal myself, use my therapies, use the tools, the techniques that I have learned, and also follow the path of spirituality. Of course. Yeah. गुरुजी तो हैं ही. Guruji तो है ही। नहीं, because I can relate to it in a way. People से ना निकोटीन की एडिक्शन होती है, आपको अल्कोहल की एडिक्शन होती है,
मैं बोलता हूँ खाने की एडिक्शन सबसे बड़ी है ये होता है खाने से भी बिकॉज बड़ी क्या एडिक्शन है, गम में रहना, अच्छा डिप्रेशन में रहना। प्लेजर ऑफ द पेन यस, प्लेजर ऑफ द विक्टिमाइजिंग मेरे योरसेल्फ को, ऑल द टाइम हाँ, मुझे लगता है यार लोगों के पास कितनी लग्जरी है लाइफ में आजकल अरे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं यू नो एंजाइटी पेशेंट हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता कि मेरे को आई एम गेटिंग रेस्टलेसनेस, मुझे पता नहीं पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट ऑफ कोर्स मेडिकली, बट आई जस्ट फील कि हमारे टाइम पे हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम डिप्रेशन में या सैड रहें। 2 चांटे पड़ेंगे, सैड हो जाओ, सब्जी लेके आओ, हाँ गो एंड वॉक। सो आप पहले ही वॉक जब करोगे, आपकी बॉडी में जो ट्रॉमा स्टोर्ड है वो निकलना शुरू हो जाएगा। टाइम ही नहीं है, फ्री टाइम ही नहीं बैठने का, सोचने का, अरे मैं सैड फील कर रही हूँ, अच्छा मैं डिप्रेशन में हूँ। आई एम नॉट सेइंग मेडिकली जिसको हो रहा है, बट लोगों ने जो बना लिया है, जिनको ऑफ मेडिकल कोर्स का कुछ है ही नहीं, बट दे जस्ट बट एक थिंक साइकोलॉजिकली उन्होंने अपने आप साइकोलॉजिकल है, क्योंकि को उनको लोगों से वो मिल रहा है ना, अटेंशन मिल रहा है, अटेंशन वैलिडेशन आई वुड से वैलिडेशन मिल रहा है, फिर उनको लेजी ही रहना है, तो उनको लेजी रहने का और वो मिल गया कि यार अब तो मैं ना डिप्रेशन में हूँ, तो अब मैं आज 4 घंटे एक्स्ट्रा सोऊंगा, आई मम्मी नो कुछ नहीं बोलेंगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो वो जो हमने एक एक्सक्यूज ले लिया एक्सक्यूज है, तो बड़ा लग्जरी है यार। मुझे तो आई लगता नो है रेंट भरना है व्हाट घर का, घर में सामान आना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, काम पे जाना है, यू हैव सो मेनी थिंग्स No, I दैट यू remember हैव टू when टेक केयर ऑफ। I'm talking about like 10, 12 years when we just met at that time. I was doing 3 jobs, trying to get myself. You were healing at the same time, learning and doing certifications. यस, टाइम ही नहीं था सोचने का कि बॉडी दिखती भी क्या चलते रहो चलते रहो। और हम लोग कितना चलते थे, कितना ही एक्टिविटी कितनी हो जाती थी, योगा, एवरीथिंग। यू वर डूइंग डाइट, यू वर आल्सो ऑन, यू वर वर्किंग I आउट was सो working out so मच। much, yeah. या That आई time वो रिमेम्बर कैलिस्थेनिक्स एंड व्हाट नॉट उस यू वर टाइम तो डूइंग। 34-35 कमर थी, बड़े फ्लेक्सिबल हाँ थे, यार बट आ जाए आ जाएगा, मुझे लगता है हर एक एज में ना, हर एक बॉडी टाइप इज डिफरेंट। मेरी बॉडी को शायद दोबारा आ जाना ही नहीं है 28 वेज में। हाय, मेरे को तो इतना अच्छा लगा जब मैं वेट पुट ऑन कर रही थी ना अरु, मुझे लगा अच्छा मेरे चीक्स भी हैं, कितनी क्यूट लग रही हूँ मैं, ऐसे भी फैट आता है, आई डिडंट इवन नो। I know. मुझे लगा ओ मेरे आर्म्स आ रहे हैं, मतलब दिस इज वाओ, आई एम लुकिंग क्यूट, हॉट से मैं क्यूट लग रही हूँ, ये तो डेडली कॉम्बो है यार। So this is how you love your body, but not being unaware कि मैं Of पुट course. ऑन ही करती जा रही हूँ। I कि stopped वो myself, मेडिकल I इश्यूज started, आने लग हाँ, गए मेडिकल इश्यूज नहीं आने चाहिए। You have to be fit, no matter what is your body type, just be fit and healthy। कि मेरे में स्टेमिना है, सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ तो मेरे को सांस नहीं फूल रही है, मैं अगर बहुत देर तक घंटों तक खड़ी हूँ, काम कर रही, तो हाय ये नहीं कि एक लेग पे प्रेशर डाल रही हूँ फिर दूसरे लेग पे डाल रही हूँ। रेस्टलेसनेस हो रही है बॉडी में उस हाँ, वजह से तो बटे now like I said, have you ever felt any change in your body and वो नेगेटिव वे में अफेक्ट किया हो यस और यस, फिर उसको रिवर्स कैसे किया ऑफ कोर्स नेगेटिव वे में तो बहुत गया यार। जब रात को नींद नहीं आ रही है आपको, आपको ये तो दुख भी है कि आपका बेटा, आपका पपी, आपका ऑफ जान कोर्स जो है वो आपके साथ नहीं है, आप उसको मिस कर रहे हो, फिर आपको भी लग रहा है यार अब तो मैं मोटी हो गई, मैं पार्टी पे नहीं जाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स मुझे जज करते हैं, मेरा वेट पुट ऑन हो गया, मुझे काम के लिए बोलेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि यार यू आर अ हीलर, यू आर अ थेरेपिस्ट, एस्थेटिकली यू शुड लुक नाइस ऑल्सो, तू ही आउट ऑफ शेप जा रही है। मैंने कहा पॉइंट तेरा सही है, बट आई एम ऑल्सो गोइंग, थेरेपिस्ट डजंट मीन कि मुझे कुछ नहीं होगा, fair मुझे enough भी हो रहा है, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग, बट एट द सेम टाइम आई एम हीलिंग माई सेल्फ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है सबसे, देन आई डिड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, I looked at myself in the mirror, deeply in the mirror, into my eyes. I was looking at myself and I just asked myself, what is my biggest fear? What is it I'm ashamed of? hmm. And what is it that I would like to change in my life? fair enough And trust me, the answer that I got is only that I have to give away the grief that I was holding on to. My fear that I have to let go of this grief.
when I let go of my sadness, depression went away, stress went away, एक अकेलापन जो लगता था आपको, loneliness, and very interestingly, Aru, what happened at the same time, जब मैं ये healing process में थी, letters लिखती थी अपने आप को, burn करती थी, techniques, tools करती थी अपने आप में, और I'm sorry, thank you, please forgive me, I forgive you, I love you, pono pono का prayer जो मैं करती थी. At that time, I remember I also got clients, and I forgot what I was saying. I also got clients. It will come to me. So yeah, biggest fear, I forgot. Biggest fear was you looking into the mirror and then you realized what your biggest fear was because you looked into the mirror and asked yourself, Yes, that what what is is my biggest fear, what it is that I would like to change in my Yeah. body, and I was also getting clients who at the same time would want to lose weight, so we started doing rituals for them. I started getting clients who wanted to get away with their depressions, who were I was getting clients who were borderline, depressions, into depression. They were taking medication of insomnia, anxiety, and now those people are after 3 months off their medication, and I'm really grateful they followed what we were actually working on them. And still, I wanted to say, put some point. It will come. Yeah. It will come. Yeah. You okay? You got something in your foot? Oh, this, What hurt? yeah, Twisted? I twisted my ankle day before yesterday. And नहीं 2 दिन पहले मतलब like day before yesterday. And that time I couldn't even put weight on it. And my uncle was also with me at that time. So anyways, I reached home, but it's healing. It's healing. It's It's a taking its process. own time. Yeah, it's thing. मैंने ना एक जगह एक थेरेपी में भी किया था कि जब किसी को भी चोट लगे, अब वो चोट फिजिकल भी हो सकती है, वो मेंटली भी हो सकती है ना, जैसे डिप्रेशन, सैडनेस. अगर दूसरी एक बॉडी, एक इंसान इन फिजिकल फॉर्म उसको टच कर ले, उसके साथ बैठ के बोले इट्स ओके, हमारी बॉडी की हीलिंग, हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस इतनी ब्यूटीफुल है कि उसका प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है. तो वो सेलुलर मेमोरी में ना ट्रॉमा स्टोर नहीं करने देता उतना जितना कि हो सकता है, वो आधा हटा सकता है, provided that you are that compassionate enough. When people say you're fat, are you compassionate enough for the other soul? Yeah. Are you kind enough to just sit with that person and ask, tell me what is going on with you? And sometimes maybe people don't want to talk about it. It's okay, just sit Yeah. with them, be with them. You are being kind to the other soul. That is missing. बिकॉज वो हम फिट नहीं हो रहे हैं ना लोगों के फैड में कि ये उसमें, एस्थेटिकली yeah. ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही दिखनी चाहिए, लड़की लड़का ऐसा ही दिखना चाहिए, तो ही उनकी शादी होगी, तो ही उनको पार्टनर मिलेगा, तो ही उनको आगे रिस्पेक्ट मिलेगी. आई फील इट्स सो सैड. It's an illusion I would that say we it all is have what it created. is because there are people who are coming out of it also quickly. There are people who are not able to. नहीं, And आजकल लोग अवेयर भी बहुत हाँ, मैं हो वही गए बोलूँ, हैं. इस पे ही थोड़ा और स्ट्रेस अगर डाले तो social media is a big part in it. Oh yeah. In Oh yeah. in the good, the bad, and the ugly, I would say in every form. You would have clients who are facing these issues. You might or Yes. might not have faced issues. So I would like to put little stress on this fact. If you can tell me how do you cut out the noise? Yeah. Like everybody tells you, cut out the noise, cut out the noise. कैसे? yes. So वो इंटरनल चैटरिंग जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो उसमें हम इनर चाइल्ड बहुत करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज कमिंग फ्रॉम योर इनर चाइल्ड, ट्रॉमा जो हमें याद भी नहीं होगा, राइट? इट्स स्टोर्ड इन द लिम्बिक सिस्टम, जहाँ हमारे इमोशंस स्टोर्ड है. सो आई रिमेंबर few of my clients में दो की मुझे भी जो याद आ रहा है, they would come to me and अगर वो लोग ना कैमरे पे नहीं आ सकते थे, without filter they will not post their pictures. So they was feeling that negative about themselves. Yes, because I feel if anybody is using too much of filters, too many filters, जहाँ आपका body shape change हो रहा है, जहाँ आपका complexion change हो रहा है, those are my clients, I would say. So I feel we need to address that. See, sometimes it's for fun चलता है कि मेरे को फन के लिए मैंने ये पिक्चर डाल दी, but if every time you want to hide yourself the way you look, first you need to love yourself, accept yourself the way you look. तो लोग ना वैसे पिक्चर्स डालने लग गए थे बम्बल में, जो भी डिफरेंट डेटिंग साइट है, एंड देन दिल बी लाइक आई एम नॉट फाइंडिंग एनीबॉडी टू गेट मैरिड.
And then I will be like, what is But happening? that's not you who's getting Exactly. nasty. Then we started working on those areas in their mind with them. तो वो धीरे 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 ना वो लॉक्स खुलने लग गए. फिर जब मैंने उनको बोला कि ठीक है यार, why don't you give me a feedback, टेस्टिमनी दे दो, तो देयर वर पीपल हु डोंट इवन वांट टू फेस द कैमरा कि मैं अपने आप को देख नहीं सकती, मुझे लगता है मैं बहुत मोटी लग रही हूँ. यू नो, लोग उस अगर लोग देखेंगे मैंने फीडबैक देखा, तो जिन लड़कों से मैं बात कर रही हूँ वो भी देखेंगे मैं मोटी लग रही हूँ. दे माइट रिजेक्ट मी. सो लुक एट द काइंड ऑफ फियर द सोसाइटी हैज पुट ऑन मोस्ट ऑफ अस. How do you get over it? First is accept your body, The way it know is. your the way it is first, then start changing it for yourself, not for the society. Or what Where you you want. feel that you are feeling healthy from within, then you start shaping up. उसके लिए हमें फैट बर्नर या वो कितनी मशीन्स आ गई हैं या सर्जरी, ये सब only if your health. अगर कुछ medical issue, I completely get that. If there Fair is enough. hormonal issue, I'm also a woman, I get that. But if it's not there in your 20s and 30s, if we are doing this, it is very very sad. You know, I think as a friend, as a well-wisher, as a woman, as men, we all should stand up and be with those people, provide them hope, inspiration, love and compassion. Let's be kind and tell them, यार इंस्टाग्राम के लिए मेरी लाइफ इंस्टाग्राम पे नहीं है. वो अगर what if tomorrow it disappears? I'm saying, what if filters disappear? Yes, then You what? can only post what you are. What you are. Start loving yourself. You are the most beautiful creature because भगवान ने तुम्हें खुद खुद बनाया बनाया. है और हम सबके अंदर वो भगवान है. Am I ready to activate it? Am I ready to touch that divinity, that Guruji in me? वो है, अपने आप से प्यार करो. लोग तो कहेंगे ही तेरे में ये खराब है. आज भी अभी वीडियो देख के बोलेंगे आना में ये खराब है, आना ने ये नहीं किया, आना ने वो. आई एक्सेप्ट एवरीथिंग. I am not denying or rejecting anything, or not even going to ignore you, but I love myself so much क्योंकि मेरे अंदर वो भगवान है. वो कहते हैं ना, एक पुराना गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, वो कहना. 4 लोग तो कहेंगे ही कहेंगे. आप कितने भी सुंदर हो जाओ, आपकी वेस्ट 24 हो जाए, तब भी कुछ तब कहेंगे भी अलग से. 24 कुछ ज्यादा ही पतली हो गई है. आई हैव सीन माई क्लाइंट्स, उनको ये है कि उनको मोल हटाना है फेस से, कि मैं एस्थेटिकली सुंदर नहीं लग रही. एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि मोल का अपना पार्ट है हमारी बॉडी में, स्कार्स का अपना पार्ट है हमारी You know बॉडी the में. पास्ट लाइफ से हम उसको लेते हुए आ रहे हैं. Okay. राइट. सो इट हैज गॉट सम, कोई भी चीज हमें ऐसे नहीं दी है भगवान ने. Yes, if there is a dry skin, I understand आपको वो सर्जरी करानी है, that's a different thing. But if you have a scar, लेजर से क्यों हटाना है उसको? Yeah, if it's making you really feel कि नहीं इसकी वजह से मेरी रुकावट है लाइफ में, I get that. But let's not make it a habit कि मुझे पता नहीं बिल्कुल flawless बनना है और बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर. आप अट्रैक्टिव हो उस मोल के साथ भी. आपको वो 4 लोगों ने बोल दिया आप नहीं हो, तो that doesn't mean आप हो. आप अपने आप को रोज मिरर के सामने बोलो, I love myself, I am pretty, I am beautiful, I am confident, I am enough. That's it. Well, you know, if you see, imperfections have their own beauty. I know. The biggest and the most beautiful painting is called the Mona Lisa, where she's frowning. Yes. Yeah. Very true. Well You, said. Yeah. you know, so I would say that is the biggest imperfection of such a beautiful image, that a woman is frowning, and that is the most beautiful picture that people talk about. Frida Kahlo, I know she used to paint, and उनमें तो उनके mustaches भी नजर आते थे, and so beautiful, like भाई epic है वो तो. So मुझे लगता है कि just accept the way you are. When you start loving yourself, because the God is within me. मैं बाहर मंदिर जा रही हूँ, मैं बाहर सब कुछ कर रही हूँ, मैं अपने अंदर के भगवान को क्यों नहीं पूछ रही हूँ? अपने अंदर के भगवान से क्यों नाराज हूँ? मैं क्यों अपने अंदर के भगवान को इग्नोर करना चाहती हूँ कि मैं फिल्टर में ही देखूंगी उस भगवान को? So true. राइट. तो मैं जब बाहर पूजा कर रही हूँ, पहले मैं अपने अंदर पूजा करूँ और फिर मैं बाहर पूजा करूँ. जर्नी starts within, right? So I just feel, love yourself. You are a creation of God. Fair enough. Yes, just stay healthy, definitely, and stay fit. और पॉजिटिव बॉडी पॉजिटिविटी तो यही है यार. हाँ, चलते चलो. अब इसी पे थोड़ा सा और स्ट्रेस अगर करूँ तो, do you think like how people are looking at mental health as a subject now? You know,
feminism is not only about feminine side, there's a masculine side also towards it. Don't you think, like, this is my belief, that positivity should also be a subject for kids, and 100%. if we catch them young, फिर इतना कहते हैं ना, ऊपर आके इतनी प्रॉब्लम्स, इतना confusion and delusions, like the word these days, अब ये delulu, Delulu. इतना delulu कोई, Solulu. हाँ, इतना delulu कोई नहीं होगा. आई एग्री सो चलो, अगर मुझे लगता है मेरे हमारे स्कूल टाइम में अगर ये होता सब्जेक्ट, यार वाह यार, बात ही कुछ और थी, निराले ही होते, अभी भी है. यू नो I know what you're saying. आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं हीलिंग में आई. हीलिंग में आने का मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी से अलग हो गई. हीलिंग में आने का मतलब ये कि मैं अवेयर हो गई कि मैं कौन हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है. मैं अपने आप से ज्यादा काइंड हुई हूँ. हम लोगों से काइंड हो जाते हैं Yeah. और हम अपने आप से काइंड होना भूल जाते हैं. मैं लोगों को बता रही हूँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे छोड़ दिया, आई एम विद यू, आई एम योर फ्रेंड, और मैं खुद आई एम हॉगिंग एंड नॉट रियलाइजिंग दैट इट इज हार्मिंग माई बॉडी. आई एम नॉट काइंड टू माई बॉडी. एंड अगर मेरे को पता है कि मैं खा रही हूँ तो मेरे उस पर, बिकॉज इट्स एन एडिक्शन, मेरा बस नहीं है, मुझे कुछ फोर्स हो रहा है, कंपेलिंग ईटिंग हो रही है, होगी, देन लेट्स गो मोर डीपर एंड चेक व्हाई इज दिस हैपनिंग. आई एम फीलिंग सैड, व्हाई आर यू फीलिंग सैड. ओ आई फील लोनली, व्हाई आर यू फीलिंग लोनली. मेरे ये ड्रीम्स थे, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, वो मिली नहीं, तो व्हाट कैन वी डू टू फॉर यू टू अचीव दैट. गो डीपर इनसाइड द इसमें ना लेयर्स. कितनी बार, I believe it's a defense mechanism, और we are just ignoring it. कितनी बार बोलता हूँ, मुझे नहीं पता यार क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, मुझे नहीं पता मैं ऐसे फील क्यों कर रहा हूँ. वो How do you, you know, हाँ, तो मैं जब बोलती फाइन, अगर आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों खा रही हूँ, नाउ आई विल मेक देम गो एंड थिंक दैट यू आर ईटिंग राइट नाउ. So okay, now when you're eating, just do a slow motion eating and find out when was the trigger point. Before eating कुछ तो कर रहे होगे, चाय पी रहे होगे, सोच रहे होगे, खा रहे होगे, टीवी देख रहे होगे, कुछ तो कर रहे हो ना. So before eating, जब आप कुछ कर रहे थे और आप eating में आए, उसके बीच में क्या होगा? What was that trigger? trigger that. We need to reach there. जैसे हम वहाँ पहुंचे, मैं नहीं कहूंगी देख 100% सब कुछ ठीक हो जाता है, पर अगर वो ठीक होना शुरू हो गया है, आपको आपको पता तो महसूस चलना हो शुरू हो रहा गया. है, तो वो शुरू हो गया. जैसे आई थिंक yesterday only I was sharing the satsang and I just said one thing that we can't see the air but we are breathing there, right? हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी के आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा कि कितनी सारी वेवलेंथ्स क्या चल रहे हैं. द मोमेंट हमने रिमोट ऑन किया, म्यूजिक भी देख सकते हैं, ड्रामा भी देख सकते हैं, न्यूज भी देख सकते हैं, जस्ट ऑन द क्लिक, क्योंकि वेव्स तो वही है ना, हाँ, right? So when we know that if I'm feeling sad, if I'm feeling happy, if I'm feeling whatever, they are different, things that is happening in my aura. So how should I start doing something जहाँ मैं अपना ऑरा धीरे 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 शिफ्ट करूँ, मेरे चक्रा शिफ्ट हो रहे हैं, मेरा थॉट शिफ्ट हो रहा है. थॉट भी तो एनर्जी है. आज हमने किसी ने सोचा ही होगा ना कभी कि यार एक पॉडकास्ट करना है, पहले सोच आई होगी तो ही आया. आज किसी ने सोचा होगा ना ये ऐसा दिखना चाहिए स्टूडियो, सोचा तो बिल्ड हुआ. सो फर्स्ट सोच है. सोच क्या है? मेरी एनर्जी है. एनर्जी के बाद वो मैटर में आया ना. एनर्जी इज गुरु जी, मैटर इज आना, fair enough. राइट? तो वो अपने आप को जानना उस प्रोसेस में, इट्स सो ब्यूटिफुल टू अंडरस्टैंड. इट इज ओके दैट आई एम ईटिंग. फर्स्ट एक्नॉलेज कि हाँ मैं खा रही हूँ. सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, आई अंडरस्टैंड. रिजेक्शन सिंड्रोम है लोगों को बहुत सारी चीजें हैं, बट उसको कॉन्सेप्ट में मत छोड़ो. आजकल सबको कॉन्सेप्ट आ गए हैं, सब बड़ी बड़ी लाइन्स और बड़े बड़े वर्ड्स मारते हैं, हमें ये है, हमें वो है. आपको नहीं पता, हमें पता है, आपको है. नाउ व्हाट? Yeah, Let's get to the solution rather than we are just running around the bush कि भैया ये इशू है, ये इशू. अरे समझ, आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट, आपको इशू है, अब इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन माइंड क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? I think it comes, this is a circle back to the same thing that you said at the start, the habit of victimizing yourself. यस, Solution आ जाएगा तो victim रहा ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं रही तो बहाना नहीं रहा. एग्जैक्टली. हमका सबका एक्सक्यूज चल रहा है ना. सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट? अभी मेरे लिए सक्सेस, मेरे हिसाब से मेरा सक्सेस वो है जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लग रही है, मैं इंडिपेंडेंट कॉल्स ले सकती हूँ. मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंट कॉल्स तब ले पाऊंगी जब मैं हेल्दी फील कर रही हूँ.
अगर मेरी बॉडी फिजिकल फिट भी है, मेरे पास एब्स हैं और मसल्स हैं, सब कुछ है, पर मेंटली आई एम स्ट्रेस्ड आउट, हम्म मैं तब भी सक्सेसफुल नहीं हूँ। और मेंटली मैं बहुत पीस में हूँ, लेकिन मेरा वेट बढ़ा हुआ है जो मुझे अनहेल्दी फील करा रहा है, तब भी मैं सक्सेस नहीं हूँ। क्योंकि आप वो कर नहीं पा रहे जो आप कर नहीं करना पा चाह रहे रहे जो हैं। आपको करना है। सो ऑल्सो टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, जहाँ पे हम आजकल इतने सारे कोर्सेज कर रहे हैं, एआई आ रहे हैं, अब हमें ये कोर्स करना है, ये कोर्स करना है, वी आर सिटिंग एंड डूइंग द कोर्स। We will only be successful when we know the foundation of the success of any kind of success, right? कोई destination तो है नहीं success की, सबका अपना अपना success है. To reach there is first having a healthy body and healthy mind together will lead me to my individual success. So yeah. Like one of my mentors told me कि what is success? I just said पैसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, बीवी होनी चाहिए, बच्चे मैं सारी Yeah. बातें बोल दी कि सब है अब। Uh, मैं कहा अब मतलब कि बेटा सब है, उसको बैलेंस ही नहीं कर पाया तो क्या करेगा सक्सेस का। That reminds me one of the reels I saw of Hrithik Roshan, where somebody asked him that what is a success for you, and he said कि मुझे ना हमेशा से बोला जाता था, मुझे लगता था हाँ सक्सेस का मतलब है मैं एक्टर बन एक्टर बन जाऊँ, जाऊंगा, एक्टर फेमस बन बन गया, जाऊंगा। फिर अवार्ड ले लिया, एक अवार्ड ले लिया, कुछ टाइम के लिए हैप्पी था, फिर हैप्पीनेस चली गई, दूसरा अवार्ड हो गया, तीसरा अवार्ड हो गया। सो it is not a success, it is not being happy, because happiness is a state of mind, it is being joyful, and I will be joyful when I feel healthy. I think when once you can balance it, Uh, you told about an aspect that you did when you looked into the. I connected it to myself because when I reached 180 kgs, going to the washroom was a task. And I didn't want to look at. मैं लिटरली एक लुंगी पहनता था और एक कुर्ता पहनता था कि मेरे को अपने आप को देखना ही नहीं है। So one of my trainers told me कि there's an exercise, do that, get naked in front of the mirror and look at yourself. 5 मिनट घड़ी देख के देखना है। That helped me a lot. So and उससे ना एक अजीब सी चीज़ हुई, I started enjoying looking myself in certain postures, not nakedly, but what I'm talking about is even when you wear clothes, you're hiding yourself. But at the same time, sometimes it gives you confidence. Like if I just change my posture to chest out, I feel powerful. Or if I'm just slouching down, I feel कि यार हो गया बहुत यार, lazy. You know that letharginess, fatigue comes into play. The moment I am much more open towards talking about stuff, my whole body language changes. As in acting, body language works a lot, right? So हाउ डू यू थिंक कि बॉडी पॉजिटिविटी और हीलिंग के पैटर्न से बॉडी लैंग्वेज कैसे आपको हेल्प कर सकती है या क्या कर सकता है? So it reminds me when I was doing my NLP training हाँ course from John Grinder, and I remember, and Carmen Bostic and Michael Carroll, of course. So I remember that uh, मिल्टन एरिक्सन का हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, एंड पेशेंट यूज्ड टू कम टू हिम, और किसी ने बोला मुझे वो डिप्रेशन है, एंड यू नो व्हेन समबडी इज हैविंग डिप्रेशन और गोइंग थ्रू दैट फेज, उनकी बॉडी बॉडी डिफरेंट हो जाती है, शोल्डर स्लाउच हो जाते हैं, हेड थोड़ा सा लो होगा या चेस्ट इनवर्ट होगी, यू नो स्टमक थोड़ा सा बाहर होगा, डिफरेंट बॉडी पोस्चर होता है, आप देख सकते हो कुछ तो ऑफ है। He said, he didn't say anything. He said, I'm not going to give you any medication, if I remember this correctly. He said that come after 1 week, और 1 हफ्ते तक ना आप मुझे इस पूरी सिटी में जितनी भी बिल्डिंग्स है पता ना कि कितने माले तक की बिल्डिंग। And he kept on doing that, doing that, doing that. He came after 1 week and he was absolutely fine. There was no depression, because very smartly, and you see कितने अच्छे से उन्होंने उसका बॉडी पोस्चर चेंज कर दिया कि जब मैं बिल्डिंग के माले पड़ रही, हाँ, तो होल मेरा बॉडी ओपन मेरा पूरी बॉडी ओपन हो गई, मैं ऐसे जाई जा रही हूँ, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे फिर से सैड होना है। हाँ तो जैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है, मेरा माइंड सेट चेंज हो गया है। तो अगर हम व्हेन वी सी यू नो सैडली वी सी बेगर्स ऑन द रोड, और जब कोई बेग कर रहा है तो कैसे उनका बॉडी पोस्चर होगा अगर आप बेग कर रहे इनवर्ड्स हो, होता है राइट? काफी। सो आप उसमें पावरफुल नहीं फील कर सकते हो। So if somebody, I feel the first thing that I notice with my clients is how is their body language, how are they coming to me. That tells a lot about them, what story is going in their head, in their life. First thing I tell them, okay fine, just take a deep breath. Shallow breathing शुरू हो जाती है. Take a deep breath. When you are taking a deep breath,
राइट. फर्स्ट थिंग, आपका बॉडी में ऐसे तो मैं शैलो ब्रीदिंग लूंगी, डीप ब्रेथ ले नहीं सकती हूँ. डीप ब्रेथ के लिए मुझे अपना बॉडी पोस्चर चेंज करना है. आई वो विल खोलना आस्क देम टू पड़ेगा. स्टैंड एंड जस्ट नाउ जस्ट लिफ्ट योर हेड अप एंड नाउ टेक अ डीप ब्रेथ. तो आधा तो काम वहीं हो गया. बॉडी लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कितने लोग हैं जो जिम में आते हैं, जिनको अगर लग रहा है कि मैं मोटा हो गया हूँ, मोटी हो गई हूँ, मेरे को लोग देखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी. हाँ. So I tell them, first build in that confidence in you, because you, if day one I am hitting the gym and I know I'm going to be consistent, be confident कि मैं 30 दिन बाद इतना kg lose करके निकलने ही वाला हूँ. Right? That is called also mental workout. सो फिजिकल वर्कआउट के लिए आप जिम जा रहे हो, मेंटल वर्कआउट के लिए आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो. हमने ना ऐसे भी बैच फ्लावर्स निकाले हैं, विच इज वेयर आई गिव बैच फ्लावर्स फॉर वर्कआउट, फॉर मोटिवेशन. क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं होता. पीपल आर जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग. मैं कल जाऊंगी जिम, कल से जाऊंगी. अब 12 बज गए, अब तो बारिश आ रही है यार, अब नहीं जा सकती मैं. आई एम टेलिंग यू माय स्टोरी. ये मेरे साथ भी बहुत होता है. श्वेता knows that. I'm telling you my story. यार 11 बज गए, अब क्या जिम जाऊंगा. I know. She'll be like, मैम 11:15 बज गए, आपको जिम जाना है. हाँ हाँ अभी जाती हूँ, बारिश हो गई है. So I purposely make that patch where I know it will give me that push to go to the gym, change my body posture, feel good about myself, take breathe in deeply. These are small things. Stand naked in front of the mirror, or just go look deeper into your eyes and ask yourself, what is my biggest fear, and what is it that I would like to change about my life, about my body. Hypnotize your own self. There is also a thing when you are getting intimate with somebody. Your body is getting intimate, right? Your body also stores intelligence of the other person. Yeah. So instead of asking your mind कि सब चेकलिस्ट हैं, इसके पास इतना पैसा है, ये बैंक बैलेंस है, ऐसा दिखता है, ये ऐसा बोलता है, इतने क्लब्स में मेंबरशिप है, ये है वो है. Remove that. Ignore it. Ask your body, do you choose this person as your life partner? Your body will give you the signal, yes or no. You don't even have to. होता ना यार, दिल और दिमाग में कंफ्यूज हूँ, इसको हाँ बोलूँ ना बोलूँ. Ask your body how your body feels around that person. Yeah. Butterflies नहीं है. If you're feeling calm, if you're feeling so relaxed, I am home, choose that person. Yes, because this is a temple. यही तो हमारा भगवान है. So when you're taking care of your body, when you start communicating with your body will tell you इसको choose करना है. बम्बल या आपके friends वो 4 लोग नहीं बताएंगे कौन सा लड़का आपके लिए अच्छा है. आपकी body बता देगी. So true. And also then when you're choosing to get intimate with someone, be very very mindful. Be very mindful, because हम energies exchange कर रहे हैं, और उनकी इंटेलिजेंस, उनका ट्रॉमा भी आपके अंदर आ सकता है. सो हाउ फर्स्ट हील्ड यू आर एज अ पर्सन. एंड हीलिंग से ये नहीं कि मैंने कुछ स्पेशल पावर्स ले लिए. हीलिंग ऑल्सो मीन्स हाउ मच you are aware of yourself, not just mentally. मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे पता है. Wonderful, great for you, right? IQ is good. What about your EQ? Yeah. Right? So listen to your body. That is body positivity. Being aware of my body, being conscious about my body. मैं अपने बॉडी के इंटेलिजेंस से कनेक्टेड हूँ, तो मेरा ऑरा कितना क्लेंस है, मैं किससे अपनी बॉडीज की एनर्जी से एक्सचेंज कर रही हूँ. Okay. There's a thing That's that too much of information. no. There's a thing I would love to do in this podcast, and others as well. Tell me 3 words without thinking. Okay, all right. Rapid 3 fire. words. Rapid fire. Rapid fire. Okay, Rapid fire. I like it. 3 words. Also, why that define you and your body together. Me and my body together. Yeah. Love. Why? Compassion or love. I love my body. I love the way I look. I love the way my clothes fit into my body. And अगर मुझे लगता है ना साइज ऊपर नीचे है, I just speak to my body. I say body, I want to wear this brown trousers today. Body वो fit कर लेता है. I don't know how. I'm telling you, this is magic. Please try this at home. You will be amazed how your body would shape up and listens to you. So I communicate with my body. Second, Okay. First is that I explain. I love my body. I'm in love with the way I look, with the way I sit, my body language, and the way I talk. It makes me feel comfortable. I am very much confident and comfortable in my skin.
I don't Fair want to enough. be like somebody else. I want to be like me. This is Ahana. Second. That second हो गया ना, अभी तक मैंने बोला ना, first is First love. is love. ठीक है, Second is okay. अच्छा. First is communicate. I Okay. love to communicate to my body a All lot. And third, I would say that being aware of my body. I let my body choose my partner. I let my body choose my physical activity. Okay. Beautiful. Arey, I'm loving it. Wow, wow, wow. Actually, I do that. See, I Love, just got aware. communicate, Aware of my body. So I actually I'm so aware that I'm aware of my body. My body will reject this person. That person is rejected. Fair enough. My body will accept this person. That person is in my inner circle. My body will say, Ahana, 3 महीने योगा करना है, तो योगा करना है. मैं बॉडी को चैलेंज नहीं करती, नहीं फैट आया है, नया कुछ आया है, मुझे ये करना है, जल्दी मेरा वेट लूज हो जाएगा. नहीं, मेरी बॉडी की इंटेलिजेंस फार बियॉन्ड है जो आ रही हैं चीजें. आई वुड चूज टू लिसन टू माई बॉडी. Fair. वाह, मैंने बोल दिया. सो यस, या. Fair enough. So that we conclude on that. Okay. Thank you Thank so you so much for Jai coming. Guruji. Jai I'm so Guruji. glad you called me, and I really, really, really hope it reaches out, even if to that one soul One person. जो अपनी बॉडी से सैड है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पसंद नहीं कर रहा है, डिस्टेनिंग योर बॉडी, इग्नोरिंग योर बॉडी, सिर्फ एक जने तक भी अगर ये पहुंच जाए, प्लीज लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी द वे यू आर. जस्ट नो दैट यू हैव टू बी fit and healthy. Mental exercise and physical exercise both are important, and Aru and I will love you, love you, love you. Always. Thank you. Jai Guru. Jai.